I'm Siddhant and she is Archana. You happen to hear me on the radio on Kasakai, Mumbai, and my fortune to actually be standing next to you, Siddhant. I'm so sorry I haven't seen your television show yet. You've got to pardon me on that account. But to tell you that what brings us together is a beautiful project, experience, and a story that we all can't wait to watch on the big screen. But because I present music every day, and Siddhant here knows what emotions and sentiments mean and how one needs to infuse them in everyday soap operas, I can tell you one thing, we're both feeling extremely emotional about this moment. yes, it's just a start. So Pooja Entertainment's T-Series and Legend Studios welcomes you all for this very special night, which is of course Sarabji's musical evening. What I'm most proud about is how we are churning out the heroes of our country in a very, very big way. And there's no better tribute than Bollywood and some people who present them with such heroism, which they truly deserved. So I thank the Bhagwani family, I thank Omanji, I thank Sandeep Singh, I thank everyone, T-Series, for having come together to make this such a mega, mega exciting project. Because everyone I meet these days keep telling me, we can't wait to watch this movie. And may I please request each and every one of you, thanking you for coming here in such a large audience, in such a large number, and I can sense how excited you are about this musical journey, to pay 30 seconds of silence to the hero, Sarabjit. Yes, I would request you all to please stand up. And of course, being a very unique and an extremely different order, may we please call upon our wonderful dignitaries to come here and light the lamp. Yes. I would request Mr. Bhushan Kumar to please accompany your mother to the stage. Mr. Umang Kumar to please do the same. Mr. Jackie Bhagwani to please accompany your mother to the stage. And Sandeep Singh. There you go. Yes, last but not the least, a very special guest. I feel like an extended family to Sarabjit right now. So, हमारे सरबजीत भाई की wife, Mrs. Supreet ji.
Thank you so much for making this happen, Team Sarabjit. Let the music do all the speaking, as we all know that the soul of any film or any story is the music behind it. And we thank the fantastic magicians who are going to be joining us in just a bit and taking us on this journey. So let the music take it away. Sarabjit, the musical. Thank you. Enjoy. So I really didn't recognize you, please pardon me. But I have to say this about this gentleman, that every time he's walked into our radio station and sung, we're like, what is this ocean of talent? He teaches, ladies and gentlemen, and I think anyone who has the talent and has the gift and teaches is the biggest and the highest authority on what they do. So please, I would like you to clap again for him. Pritesh was on the piano. मैं बहुत आयरॉनिक फील कर रही हूँ कि मेघदीप जो हमारे लिए गिटार बजा रहे थे वो एक्चुअली बरसन का गाना था, सावन का गाना था, और आपने गुजारिश, सावरिया और सारे गाने जो आप गाते हो ना, उसमें आप हमको कहीं ना कहीं जर्नी में लेके जाते हो. अभी भी जब आप गा रहे थे, it looked like you were romancing the mic and it was the more and you were like just ring now. How do you do this? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये सब हुआ सरबजीत की वजह से, और थैंक्स टू रणदीप हुडा जी जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है. हम लोग जी रहे थे बैकग्राउंड के अंदर, तो आई नो हम लोग कैसे कितना रोए हैं, हमें पता है. तो जो सब चीज़ें और तकलीफें याद आके हमने ये कहाँ से आता है कुछ मैं बोल नहीं सकता. मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहूँगा. मैं टीवी करता हूँ, रोज़ शूट करता हूँ, एवरी डे ऑल डे, और जब शूट से निकलता हूँ तो बॉम्बे में सारी लोकेशन बहुत दूर की है, तो 1 घंटे का टाइम होता है. और ये गाना मैं हमेशा सुनता हूँ जब से ये सॉन्ग लॉन्च हुआ. एवरी डे आई बीन हियरिंग दिस सॉन्ग एंड रणदीप इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई रियली एंजॉय दिस सॉन्ग. ये आवाज़ जो आपने सुनी इतनी ब्यूटीफुली रोमांस करते हुए, इसी आवाज़ को मेरा जुनून गाते हुए सुनिए, जो मुझे लगता है हम सबका जुनून होना चाहिए. For 20th of May to watch this movie Sarabjit, it has to go to every home. Everyone has to feel this story, because at the end of the day, as Indians, this is one thing we live for, to see what a common man goes through, and that is everyone's struggle. It's our struggle in our personal lives, but he became the hero for that. तो शैल आप अभी उस जुनून वाले जर्नी में लेके जाइए. We can't wait to hear this. अमेजिंग बात यह है कि सरबजीत का म्यूजिक जैसे हम जब रेडियो सिटी पे प्ले करते हैं, द काइंड ऑफ ट्रांस वी गो इनटू, वी जस्ट वांट टू हियर इट ऑन फुल ब्लास्ट. एंड द सॉन्ग दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट, सलामत, इज number 1 on the charts for the last 3 weeks. Let's clap for that. What a feeling that Sarabjit is already touching people's hearts through the music, and probably that's why the ode to the music of this music of the film today is really, really important for us. Of course, the song is composed by Amal Malik, who has been giving us great music lately. And so, Jannah to very obviously, I think it's the obvious thing. So, Let's hear it again. Let's have Salamat. It's wonderful to be here, and I would like to thank Bhushan Kumar sir, Ajay Kapoor, and Umang Kumar sir for believing in this song and giving me this opportunity to work in such a big and prestigious film. Thank you so much. and I would like to thank you for giving us such a brilliant song. Thank you. I'm a great I fan would of like your to song. thank the entire team for having me a part of this song, and I totally enjoyed singing this, such a soulful melody. With that pure name and that pure voice, I'm sure Tulsi or anywhere will be called and beckoned upon. But Amal, आप कमाल. जो भी गाना आता है हिट होता है यार. कैसे? How can you not try for this young composer whose music is everywhere, whether it's an entertainment park or
a horror film. But I have to ask you, why would Sarabjit have been a special moment for you? Because it's a story of an Indian, and I'm sure for you to have composed something this grave must have meant a lot. See, first of all, it's really unbelievable for me to be part of this film because with such a song, because I've made this song, I composed it when I was 17. Okay, so this is around 7 years back. And it was Bhushan sir who heard the tune. Just randomly one day I played it to him, and Umang Kumar sir came to office and we all heard the song together. And it's the first song of my life that, usually a director always has something to, say, maybe this is not good or that is not good, but he gave me 100% as a director and said, I don't want to change anything in this song. So I think it's the director's vision, it's the music label T-Series, Bhushan sir's vision, and most importantly, I think the writer, I think Rashmi and Virag both have done a wonderful job. Please stage pe aaiye because we want to felicitate this 17-year-old अमाल सॉन्ग. पाशु सर, थैंक यू वेरी मच. आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं, बिल्कुल हमें नहीं दिखे हैं और क्यों आज हैं आप, प्लीज़ फेलिसिटेट करते हुए प्लीज़ आके हमें बताएं. प्लीज़ कम अप ऑन स्टेज सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस वेरी हम्बल जॉइंट. क्या आयो सर? हिकिड़ी ॻाल्हि चयो, हूअं त तव्हां किथे ॾिसण में नथा अचो, अॼु कीअं अची विया तव्हां जो स्पेशल तुंहिंजे खानदान के कोठी में? मैं आया हूँ अपने बच्चों के लिए, जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख की पहली फिल्म. I also know you're a music lover. What is the music of Sarabjit mean to you? Your kids have done splendidly well with that. Honestly speaking, it's fantastic. और इसमें उमंग जी का अंदर बैठा है संदीप सिंह और दूसरे भूषण जी, इनका हाथ ज़्यादा है. He's the man who's written the song, so I think it's a huge amount of pressure for him and for Arijit and Chelsea who both have enjoyed this song. And I'm happy that it's reached out. Thank you to everyone. And Randeep Huda, you're here. I love making music for you, man. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. चलें? Ladies and gentlemen, huge round of applause, please. संदीप फ्रेगमेंट बाहर आना. सॉरी आपको ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर संदीप सिंह हैं और मेन प्रोड्यूसर है फिल्म के, जो मेरे साथ पहली बार फिल्म लेके आए थे. फिर हमारे भूषण जी बाहर बैठे उनके साथ में, और उसके बाद आपने जो हमारे बच्चों को, जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख को इस पिक्चर से साथ में लिया. रियली आई एम वेरी हैप्पी. मुझे लगता है आप इंडस्ट्री छोड़ दो, मैं था और ये हैं. ये कुछ नहीं बोलूँगा सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू दोस्ती. थैंक यू मान. Thank you so much. There's so much I want to talk to Virag about, but not now. Thank you very much for being here and being a part of such a beautiful project. Up next, the song that we are about to present, Nindya, is probably the woman with the most beautiful eyes in the whole universe, Aishwarya Rai Bachchan, who couldn't unfortunately join us today because she's had a sore throat for a while, talking with all her heart and soul about this movie and promoting it in Cannes. So we thank her for that, but we're really missing her tonight. And this is her favorite song, so much so that जब संजय लीला भंसाली ने इस गाने को सुना, तो he couldn't stop himself and he called the entire team, Omang ji, he called just about everybody, Sandeep, everyone, to tell them that my God, what a song this is. So I think Ash का ये favorite गाना निंदिया हो जाए. Yes. Okay. Thank you very much. So aptly composed. Oh my God. Megli, thank you so much for arranging this song so beautifully. And Shashi and Shivam, you guys have such unique vocals, but what unison on making a tune. Thank you. You guys are amazing. Can we please hear it for them for the Nindya song, for being a favorite of even one of our stalwart composers, directors, and probably the most multi-talented person, Sanjay Leela Bhansali as well. Really, I would like to thank at this moment somebody who's been very deeply involved with this entire film, obviously. Deepshika, please come up on stage, and Jackie, please
हमारे बीच में आए because we want to felicitate some wonderful people associated with this album. Yes, especially a very young talent who's apparently mixed all the songs so beautifully. Welcome Tausif Sheikh. Can you please come on stage? And Eric Pillai, who's actually done the mastering. Is Eric here? Eric, are you here? Oh, he is on. बोलना क्या था ये तो क्लियर किया I'm sorry, that's my mistake. Sandeep Singh, the lyricist, may I please call you upon stage? I would like to say one thing. Special thanks to Sandeep Bhai And Umang sir as well. Umang sir as well. संदीप भाई को इतना भरोसा था हम लोग की इस ट्यून पे. So thanks a lot again, bro. Thank you so much. Bless you guys, bless you with a lot more music. I'm sure you started with a dream song, but I'm sure it's going to go into a lot of more reality. Thank you, bless you guys. Thank you. Thank you. Actually, सब संदीप सिंह का नाम ले रहे हैं तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगा. आज सुबह ही उनका कॉल आया मुझे, and that's why I'm here. Suddenly उनका No, call आया. I am here because 2 minutes I was told come here. So please, you are no exception to the rule. No, I'm a bigger exception. Yeah, so he actually called me in the morning and he's like my brother. I can never say no to him, of course. He knows that. So suddenly he called me. He says, "कहाँ हो?" मैंने कहा शूट पे. निकलो. मैंने कहा अरे पर क्यों? तो he was like कि आज म्यूजिकल इवेंट है सरबजीत का. I want you to host. और मैं इतना एक्साइटेड, अपने एक्साइटमेंट छुपा रहा हूँ. अच्छा पर मैं तो शूट पे हूँ. तो he's like, you have to come. अर्चना तुम्हारे साथ एंकरिंग कर रही है. अच्छा. मैं फोन पे था और फोन नीचे. उनकी आवाज आ रही है. निकले on the way. So ये जो दर्द he has gone through, I think the next song I'll dedicate to you. Actually, I would like to introduce. This is my most favorite, and I know it's Bhushan ji's most favorite. From my most favorite person in this city, which is Sonu Nigam. Huge round of applause. बोलना ही नहीं पड़ता है. For having come in the state that he is in, we love him for being a 360 entertainer, but more importantly, a large spirit that he has for being here in this state. Please, I'd really like you guys to give him a huge round of applause for being the talent that he is and being a pillar of strength even today when he can't even barely stand. Sonu ji, we love you. Thank you so much. Okay, I'm sorry, but he's redefining lungi dance for me. Lungi walk, right? What is it? You're looking smashing good. Can you please clap for his spirit? I love this man. जीत भाई. Where is he? लाइट वाला है अरे करेगा बाबा मुझे
सॉरी, मैं अर्चना और सिद्धांत से माइक छीन के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये गाना जब जीत जी ने और भूषण जी ने मुझे और उमंग जी को सुनाया तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा इतना डिफिकल्ट गाना गाएगा कौन। और भूषण जी ने रात में कुछ SMS किया था आई थिंक उमंग को कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सोनू जी टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। और सोनू जी अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला हाँ ठीक है वो आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी होता है, कुछ खुशी की बात होती है सोनू जी शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ था ये हमको किसी को नहीं पता था। और मैं चाहूँगा सोनू जी आप बैठ जाइए ना, तो नहीं मैं नहीं चाहूँगा, नहीं नहीं इसके बाद मुझे जाना ही है। तो आप लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन ये बिल्कुल भी चल नहीं सकते हैं और 2.5 महीने से सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल करके। लेकिन इस फिल्म के लिए जब उनको कहा गया तो उन्होंने तुरंत ये गाना गाया। और जब ये गाना गा रहे थे मुझे याद है बाहर जीतदा रो रहे थे और हम लोग रिकॉर्डिंग के बीच में अंदर जा के सोनू जी को डिस्टर्ब कर रहे थे, हक कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस गाने के लिए। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, काश मतलब ये पूरे रॉड लगे हुए हैं इनके पैर में, चल बिल्कुल नहीं सकते हैं। और इस कॉन्सर्ट के लिए भी मतलब एंड मोमेंट तक हम तैयार थे कि शायद ये नहीं आ पाएंगे। संदीप सिंह को मैं लगभग 12 साल से जानता हूँ। जब संदीप एकदम छोटा सा बच्चा, ही वॉज इन द रेडियो सिटी स्टेशन, एंड तब भी इनके अंदर में बहुत आग और बहुत उन्माद, पैशन, आइडियाज थे। यू हैव नो क्लू हाउ प्राउड यू मेक मी। दिस इज सच इट्स अ सरील एक्सपीरियंस टू सी संदीप सिंह प्रोड्यूसर बन गए हैं और उनकी फिल्म में मैं गाना गा रहा हूँ। बिग हैंड टू दिस हार्ड वर्किंग यंग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मस्तीखोर है, बदमाश भी है, बट इसको सब प्यार करते हैं। सो बिग हैंड फॉर संदीप सिंह, कीप गोइंग वेरी वेरी हाई एंड टेक अस हाई विद यू आल्सो। जीता, I would like to call Mr. Bhushan Kumar ji on stage. I would like to call Virat and Rashmi on stage, please, who's written it beautifully. मतलब ये पहले लिरिक्स राइटर ऐसे थे जो मेरे ऑफिस में आके बैठ गया, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप घर पे जाके लिख लीजिए, नहीं जो लिखना है सामने लिखूंगा मैं। तो इतने डेडिकेटेड, और हमारी अधूरी कहानी और मुस्कुराने की वजह ये सारी इतने प्यार से आपने लिखा है। I would like Umang also to come on stage here, please, for this song. Umang, now I hand over the mic to you. Thank you. दलबीर जी, आपके लिए थैंक यू। आप घर पे आए और आपने मुझे एक्चुअली आपके परिवार का एक छोटा हिस्सा बनाया। आपको पता नहीं कि ये गाना मेरे लिए इतना स्पेशल, आपको पता ही है इसलिए क्योंकि 2005 में मैंने सरबजीत भाई के लिए गुहार लगाई थी अपने हिसाब से, और मुझे याद नहीं थी कि आपको याद होगी ये बात, बट आई एम थैंकफुल कि आपको ये बात याद है। और मुझे सरबजीत जी के जीवन में बनी हुई इस फिल्म का हिस्सा बनना था, ये मेरी डेस्टिनी थी। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड रणदीप, आपने बहुत ही बेहतरीन, जो मैंने ट्रेलर देखा है, नो वन कुड हैव डन अ बेटर जॉब थैन यू, वंडरफुल। Thank you very very much Sonu bhai for coming here for this concert. बहुत टच हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी इस हालत में आ पाएंगे, बट थैंक यू वेरी वेरी मच एंड थैंक यू दीपशिका, थैंक यू जैकी फॉर बीइंग अ वंडरफुल जॉइंट प्रोड्यूसर विद अस
And I'm very thankful to Vashuji for giving me this opportunity to get along on this film. And Umang Kumar as director and Sandeep Singh of course. And the entire team of Sarabjit. Thank you very much. मैं एक्चुअली सुनील से वापस बाइक छीन के आया because I wanted to hug Sonu भैया. A person who performs 20 days a month, patiently sitting at home, yes, yet giving us blockbusters. Jeet sir, I love your song. Thank you, Jitda, for composing such a great melody, and Viram for writing the lyrics. Omar, for getting the song. Everyone sit down. चाचा बैठो. In all honesty and with my hand on my heart, I'd like to say this, that it only happens with Mr. Bhushan Kumar and at T-Series, when two writers without even knowing each other never have met each other write one song. So this song Dard was written by Jani and me put together, and it only happened because of the efforts of Bhushan sir. इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा आत्मीयता, इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्रिएट करके रख दी जाती है कि तेरा क्या है मेरा क्या है ये समझ में नहीं आता. एम सिर्फ एक रहता है कि अच्छा काम करना है. Thank you so much for that, Bhushan sir. Thank you so much. और जब ये ट्रेलर आया था, I'll just tell you, I think we were 4-5 of us watching this trailer. ट्रेलर शुरू हुआ, ट्रेलर खत्म हुआ, 30 सेकंड का साइलेंस था 4 लोगों में, और एक साथ आवाज आई एक बार फिर से. I'm really dying to watch this film. I hope you all are waiting for this film. Absolutely unanimous thought. Thank you so much for being here this evening. जो अगला गाना है, शैल जी प्लीज कम अप ऑन स्टेज हमारे लिए गाने वाले हैं. दिस इज द सेकंड कवाली इन द एल्बम. इट्स कॉल्ड मेहरबान. और मैं बहुत बड़ी मेहरबान कदरदान हूँ एंड वी आर ह्यूज फैंस ऑफ द लेजेंड स्टैंडिंग बैक स्टेज. सो Kipaji, we would really like you to come up on stage and sing this one with Shell. So Gwenda, sing! That's it. Beautiful composition by Shail and Pritesh. Thank you so much, Subinder ji. You're outstanding. Shail, you're of course. ऐसा लग रहा है आपकी तो घर की बात हो गई है. And now for the song that has made all of us dance finally in the mode that we haven't thought. When the hands go up and you don't give a damn and you want to totally take it away. I think Sunidhi and Sukhwinder ji and Kalpana Gandhar, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाजें हैं इस गाने में. लेकिन अभी जिन्होंने अपना गला साफ किया है वो आ जाएं स्टेज पर. Because इस गाने में जो एक मस्ती की ज़रूरत थी, एक लहर की ज़रूरत थी, it's completely there, it's alive and it's waiting to make you all feel the joy before you leave us, because this is quite a film that's going to take you on a journey, but thank God that the joy also remains. So, Sukhwinder ji, Kalpana, and of course, Sunidhi Chauhan, please come up on stage! सुबिंदर जी, I would like to say actually, लंदन की लॉर्ड्स की क्रिकेट की पिच एक तरफ और आपकी गाने की पिच एक तरफ. मुझे अभी भी याद है कि हाय सुनिधि, हाउ आर यू? यस, कि जब मेहरबान गाना जब आपने सुना, ये दिस इज रियली वेरी वेल कंपोज्ड, मिस्टर हाड़ा. और हाड़ा जी आप आए 2 मिनट. और मैं इतना खुश हुआ भूषण जी कि जब गाना हुआ तो इनके घर में एक टेम्पो डिलीवर हुआ था जिसमें हर तरह का सामान था. फ्रूट, ड्राई फ्रूट, शरबत, जल. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज इस तरह की जो एप्रिशिएशन है बहुत रेयरली ऐसी मोमेंट आती है कि जब मैं गा रहा था गाना तो यही मेहरबान, मैं घर पे आया वापस, मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा मेरा बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने को, तो जब तक आप ऐसा करें उनको फ्रूट खाने दीजिए, तो वो एप्रिशिएशन है. तो अभी आपने जो परफॉर्म किया है, इन्होंने भी मतलब मैंने इनके साथ गाया है, एंड इट्स रियली वेरी वेल कंपोज्ड, वेरी वेल रिटन. और मुझे बड़ी खुशी है कि
आगे फ्यूचर में भी आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर यू. यू आर रियली सच अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल कंपोजर. और भी जैसा कि मेरे साथ हमेशा पहले भी होता आया है, एक फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, बहुत ही सेंसिबल, वेरी नाइस फिल्म, वेरी सक्सेसफुल, वेरी इमोशनल फिल्म. लेकिन उसमें जब सारी टीम बैठी थी, डायरेक्टर साहब भी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी, राइटर्स, सबने कहा यार मिल्खा सिंह क्या कभी शराब पीता था? कहते नहीं. सबने मना कर दिया. मैंने कहा मैं बेटा, तो मैंने कहा फ़ोन करके पूछ लो ना डायरेक्टर को. तो आगे से बड़ा चुपके से जवाब मिला कि 1-2 बार बस. कहते बस बहुत है इतना. कहते सुखी रेडी हो जा, अब ये गाना तेरे लिए बनेगा. तो इट्स रियली वेरी इमोशनल ट्रेजेडी जो सरबजीत, इट्स जस्ट नॉट अ फिल्म. ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात, एक ऐसी दुर्घटना जिसको लोगों के सामने बड़े इमोशनल तरीके से पेश किया जा रहा है. एंड आई रियली बिलीव उमंग कुमार, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री. और इतना इमोशनल कंटेंट होने के बाद अगेन मैंने जो भाग मिल्खा भाग का जिक्र किया था कि उसमें मैंने आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसमें कोई बहुत ही चक दे इंडिया या टाइटल ट्रैक आऊँगा. उसमें भी मेरे को स्लो मोशन अंग्रेजा, तू पी ले, तू नाच ले, तू गा ले. और सरबजीत जैसी इमोशनल कंटेंट में भी मेरे हिस्से में फिर गाता थैया थैया ही आया. एंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. एंड लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज ऑफ इन द नेम ऑफ सरबजीत. हम उनके गम में भी शरीक हैं, उनकी उन खुशियों को भी याद करना चाहते हैं जो पल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जी. I would say it's a peppy number which actually completes the album. बहुत ही peppy है, इतना दौड़ता है कि मतलब आप कुत्ते से पीछा छुड़ा सकते हैं इसे. अभी देखिएगा. And Sunidhi, you will love it. Sunidhi, before I leave, I met you for the first time and I have this secret crush on you. मेरे पास 2.5 किलो का हाथ नहीं है, पर 2.5 किलो का हार्ट है जो आपको देख के 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ता है. सो थैंक यू. Thank you so much. Please increase in house. Good evening, everyone. Of course. Thank you so much for being here. It's a pleasure. Sarabjit is a very special film, and I hope you'll go and watch it because I'm going to do that for sure. So thank you for inviting me. Thank you. Thank you. The special guest here this evening. I would like to call upon Dalbir ji, please. Pasha ji, please arrange stage. Sandeep ji, अरे मन बाद में कोई नहीं.
for the man who recreated this wonderful figure who's going to shake us up, the surreal Sarabjit. Well, thank you very much for all of you for coming. मेरे ख्याल से आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं और बहुत कुछ आपकी इमोशनल जर्नी होती है, पर वो म्यूजिक के बगैर अधूरी होती है। म्यूजिक उसमें चार चांद लगा सकता है, जैसे कि आपने देखा इस फिल्म में जिसने भी गाया है, जिसने भी म्यूजिक दिया, उन्हें चार चांद लगा दिए। माय अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। प्लीज देयर इज अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। तलबीर जी, थैंक यू आने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरा दिल कभी बोलने से पहले इतना जिंदगी में नहीं धड़का जितनी घबराहट और धड़कन आज मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म में कौन सा गाना मेरे लिए फेवरेट होगा। जिसे भी सुन रही थी, जो भी सुन रही थी, मुझे यूं ही लग रहा था कि जो भी गा रहे थे ये गाना इन्हीं के गाने के लिए लिखा गया था। हर गाने के अंदर सुनकर मुझे लग रहा था कि उस कलम को मैं चूम लूं, उसे दिल से लगा लूं। जिसने दिल की गहराइयों से प्यार की सलामती के लिए लिखा, प्यार के उस दर्द के लिए लिखा, उस जीने की खुशी के लिए लिखा, सब कुछ था। मैं अनुभव कर रही थी उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस पल की जुदाई को जब हम जुदा हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि जब हम जुदा हुए थे कि इस तरह की जुदाई आ जाएगी कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे उस गाने के अनुसार कि वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मैं अभी कह रही थी तुलसी से कि एक शो में मैं इनको सुन रही थी, पापा का गाना। उस गाने को सुनकर मैं अपने घर में रो रही थी और एहसास कर रही थी कि बाप और बेटी का प्यार, उस प्यार का दर्द, उस प्यार का अनुभव, उस प्यार की वो मिठास जिससे बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण वांछित रह जाते हैं। इसी तरह सरबजीत के साथ हुआ, उसके बच्चों के साथ हुआ। उसकी बेटियां तड़पती रही, इंतजार करती रही कि हमारे पापा आएंगे। पापा कहने के लिए सामने पापा हो और उनको बुलाया जाए, पापा कहकर बड़ा एक दिल के अंदर उत्सुकता होती है, एक प्यार होता है, मिठास होती है। उस पल को जब अनुभव करें, उस शब्द का जब अनुभव करें, सच में दिल के गहराइयों से निकला हुआ वो पापा बाप को जहाँ प्यार का अनुभव देता है, वहाँ बच्चों को भी आनंदित कर देता है। पुलकित हो उठता है वो दिल जिससे निकलता है पापा। परमात्मा ना करे कभी किसी बच्चे से, कभी किसी सुहागन से उसका सिंदूर, उसका सुहाग, बच्चे का बाप बहन की राखी की वो कलाई कभी ना छीनी जाए। बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन बातों में जाऊं, क्योंकि सरबजीत नाम एक ऐसा नाम है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दुआएं दी, दोनों हाथ उठाकर। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे जो प्रेम में, प्रार्थना में, दुआओं में शामिल होते थे। आप सबने बहुत दुआएं दी। हर दिल से, हर घर से आवाज निकलती थी, सरबजीत तुम सलामत वापस लौटो।
हर हिंदुस्तानी का इंतजार था, हर हिंदुस्तानी की चाहत थी, प्यार था। उस इंतजार को हम सब महसूस करते थे। एक दिन मैंने सोचा था, बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि जिस दिन सरबजीत आया, लगता है कि हिंदुस्तान में एक ही दिन होगा जिस दिन दिवाली भी होगी, होली भी होगी, हमारी लोहड़ी के ढोल ढमक्के भी होंगे, मेरे लिए बैसाखी भी होगी, मेरी वो राखी भी होगी। सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना थी। मैंने कभी, सच है, कि ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं जब भी मांगती थी यही कहती थी, ईश्वर इतनी सी उम्र मुझे जरूर दे देना कि बॉर्डर के उस पार से आता हुआ मैं अपना बेटा देखूं, उसका माथा चूमूं, उसे सीने से लगा लूं, फिर बेशक धड़म से मैं वहीं गिर जाऊं, मुझे कोई चिंता ना होगी, लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मेरा भाई, मेरा बेटा अपने घर आ गया, मेरे बाबुल के आंगन में वो खुशियां, वो बहारें फिर से लौट आई हैं। बस इतना ही चाहती थी मैं, शायद ईश्वर को गवारा नहीं हुआ। चलिए, मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि सरबजीत के फिल्म को आप प्यार जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। सरबजीत आपके दिलों को छुएगी फिल्म। इसके गाने का हर बोल, हर वो शब्द आपके दिल को छुएगा। सरबजीत को आपने पहले ही बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है, वो आपका अपना है। आज उसे इस रूप में भी फिर से प्यार दे देना, सच में उसे सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप फिल्म देखकर एक बार कहेंगे कि सच में उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा एक निर्दोष के साथ नहीं होना चाहिए था। मैं कई बार सोचती थी, सरबजीत से मुलाकात से पहले मेरे दिल में एक बार चाहत आई थी कि ये बॉर्डर, ये लकीरें, ये हमारे बंटवारे जिन्होंने मेरे कदमों को रोक के रखा है, मैं पास में होकर भी उसके पास नहीं जा पा रही, तो मैं दिल में सोचती थी काश मेरा बस चले, मेरा रब मुझे, जब वो रब्बा आ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने भी एक दिन रब को याद किया था और कहा था, रब्बा मुझे दलबीर को न बनाकर, एक इंसान न बनाकर, मुझे एक परिंदा बनाया होता जिसके लिए ये सीमाओं की हदें ना होती, ये बॉर्डर ना होता, इनको लांघ पाना मेरे लिए मुश्किल ना होता। मैं उड़कर जाती और उसे मिलाती, जब जी चाहता मैं जाती, उसके साथ पल, कुछ पल में शायद कोठरी के अंदर भी बैठकर बिता लेती, और किसी की हिम्मत भी ना होती कि हिंदुस्तान से आई ये चिड़िया शायद सरबजीत के लिए जासूसी ना करने आई हो। कहीं मैं उतराव चढ़ाव में आई हूँ, गानों को सुन रही थी मैं, वो अपना जीवन, वो अपना प्यार, वो अपना रिश्ता अनुभव कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी सरबजीत फिल्म को देखेंगे, इन गानों को सुनेंगे, तो आपके दिलों को इतनी गहराइयों तक छू जाएंगे कि जैसा अभी मैंने चाहा कि मैं वो कलम चूम लूँ जिसने सलामती भी मांगी, जिसने खुशी भी मांगी, जिसने वो दर्द का एहसास भी कराया, जिसने भगवान से वो मेहरबानियाँ भी मांगी कि वो मेहरबान हो जाए कि हमारे बीच की वो दीवारें, वो नफरत की आग मिट जाए, बुझ जाए, ताकि मजहब के नाम से, किसी देश के नाम से किसी बस्ती में दंगा फसाद ना हो, कि किसी बस्ती से किसी रहीम का जनाजा उठे, किसी धर्म के नाम पर वो लड़ाई झगड़ा ना हो, कि किसी राम की अर्थी उठे। मैं तो यही आप सबसे एक बार फिर अपील करना चाहती हूँ कि दुआ भी मांगना इस फिल्म को देखकर कि रब्बा सच में मेहरबान हो जा, कि हमारी ये नफरतों की दीवार मिटे, गिर जाए, चकनाचूर हो जाए, हम फिर से एक हो जाएं, एक दूसरे को गले लगाने के लिए तड़पें, एक दूसरे के साथ रिश्ते प्यार निभाने के लिए तड़पें, कि हमारा फिर से दोबारा कोई सरबजीत इस कदर ना आए, कोई सरबजीत वहाँ ना फंसे, कोई सरबजीत यहाँ ना फंसे। इतना ही कहती हुई मैं आपसे फिर अपील करती हूँ कि आपके दिलों को छुएगी, आपके करीब है दिलों के सरबजीत, इसी तरह से ये भी इसे भी करीब बना लेना और इसे प्यार देना, आशीर्वाद देना। रणदीप, संदीप या उमंग, दर्शन हो, ऐश्वर्या हो, ऋचा हो, भूषण हो, तुलसी हो, मैं किस किस के नाम लूँ,
या मेरा छोटा भाई जैकी हो, सबने बहुत ही अपने प्यार और लगन से और बड़े मस्त होकर इस फिल्म को बनाया, दर्द का एहसास किया। और जिन्होंने गाया है, मैं तो हमेशा इनके लिए यही कहूँगी कि हर पल हर घड़ी फतेह आपके कदम चूमे, आप इसी तरह से बढ़ते जाएं। सरस्वती माता आपके ऊपर इतनी अपार कृपा करे कि आप जहाँ दर्द का एहसास कर रहे हैं, वहाँ प्यार का मिलन का एहसास भी कराएं, खुशियाँ भी बांटें। आपको फिर कभी दोबारा किसी इस तरह सरबजीत के लिए गमगीन गाने ना गाकर खुशियों का माहौल आप बनाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और उमंग के लिए भी मैं यही दुआ करूँगी कि उमंग और संदीप आगे जब भी कोई फिल्म बनाएं तो ये खुशियों की फिल्म बनाएं। मैं भी खुश होंगी, हमारा हिंदुस्तान भी खुश होगा, देखने वाले भी खुश होंगे। खुशियाँ बांटना इनके हिस्से में भी आ जाए परमात्मा, ये खुश रहें, तरक्की करें। दिन चौकनी और रात चौकनी और रंगीत ने सच में इस रोल के अंदर मेरे दिल को छुआ है, सच में मेरे दिल को छुआ है। रंगीत जहाँ एक हरियाणा का बच्चा, हरियाणा और पंजाब वैसे भी भाई भाई हैं, लेकिन सच में रणदीप मुझे सरबजीत नजर आता है, मुझे भाई नजर आता है। और मैं दुआ करूँगी कि रणदीप कभी भी तुम्हें नजर न लगे, तुम इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। और जो भी कोई देखे तो सोचे कि इस फिल्म में भी यार रणदीप ही होना चाहिए था, इस फिल्म में भी रणदीप ही होना चाहिए था, इस रोल में भी रणदीप ही होना चाहिए था। हमारे दिल की जो चाहत थी कि रणदीप आए, रणदीप ने आकर हमारे परिवार को खुशियाँ भी दी हैं, हमें हमारे उस दर्द को भी सहा। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि रणदीप हजारों साल जियो, तुम्हें कभी नजर न लगे, कभी नजर न लगे। Huge round of applause for this brave woman, and of course, Plus the fact that she's gone through so much pain and still wants happiness for everybody. आप सच में महान हैं, आप सबकी दीदी, आप इंडिया की दीदी हैं. I really think you need to clap for this lady for having such a large heart to include everyone in her speech and feel for everyone. No wonder कि आपका प्यार आज इतना बड़ा हो गया. Bless you all. Thank you so much for being part of this magical, musical and a beautiful journey of Sarabjit. Bless you all. Thank you. Sarabjit ji, before you leave, I request you to please आगे ट्रॉफी सर को दी, जिन्होंने बहुत मेहनत से Make the boss अरे A.M. Turas. Can you join the DG to the trophy? A.M. Turas, Pritish Mehta ji. Shail Hara. कल्पानी गंधवी, हमारे सुखविंदर जी, सुखविंदर जी आइए, सुनिधि चौहान, एरिक, अभिजीत वघानी, प्रमोद जी, गौरव बासवानी एंड शमिता भटकर।